Assalamu alaikum. Welcome. Here I am Nurul Huda, family graduate from the University of Faisalabad. I did my family in 2019 and Alhamdulillah I'm gold medalist of my batch. So we also have two other members, Dr. Sana Suhail and Dr. Sana Shabir, the most super seniors, my super seniors. Yeah, So let's first have a brief introduction of them and then we will start the discussion as well. So yeah, first of all, I would ask Dr. Sana Shabir, please give a brief introduction of yourself and let us know about yourself. yeah. Assalamu alaikum all, and thank you for inviting me here. I am your super senior, as you told. I My session was 2010. Okay, from that I started working in Excel Pharmaceutical as a junior pharmacist. Now, mashallah, I'm working as an assistant research and development manager. Yeah, mashallah. Yeah. So that's all. I hope this session will be informative as well as memorable. We recall our all the memories in when we were young. Exactly. Yeah, So let's move that's towards. all. Thank you so much, Sana Shabir. And now we will Okay, move thank towards you. Dr. Sana Suhail. So please give us Thank your introduction. thank you, Noor. Thank you for inviting us. My brief introduction is my name is Sana Sohail and I'm a former graduate. My session was in TUF was 2011 2016, and after graduating from TUF, I joined Surveyed as a retail pharmacist almost 1 year. Then afterward, I have taken the break for my MPhil studies, and then I joined Abbott Nutrition on third party payroll. And now I'm working in Abbott EPD region as a territory sales manager at the permanent payroll since 1 year. Mashallah. I have done my MPhil from Government College Lahore, GC University Lahore in forensic sciences. Mashallah. That was my dream also. My mother dreams also. So that's all from my end. Okay, thank you so much. Mashallah, you was an inspiration for me at in the university, and Alhamdulillah, it's an immense pleasure for me to see you there. Thank you so much. So, as far as my introduction is concerned, after my family, I joined. I have received a lot of opportunities, and it was my good luck because of tough that has made me able to do this. So I joined GSK as medical sales executive, and it's my very first job. And without experience, I joined this institute. It was very, you can say it's a matter of luck. And That was now, a huge before, blessing. yeah, Alhamdulillah. So before joining GSK, when I was in university, I was in so many activities. So I have been former associate member of National Youth Assembly of Pakistan and also student Mashallah. ambassador of Shaukat Khana Memorial Cancer Hospital. And currently, I'm working as an associate member of American Society of Health System Pharmacists. So, as to be a member of American Society of Health System Pharmacist, it's really a blessing for me because it's an American organization, and while sitting in Pakistan, you are the member of that particular organization, which is really a big organization in the name of pharmacy. So it's really a blessing, Alhamdulillah. Mhm. So Mhm. Yeah, very good. Nice to hear you all achievements of your all. thank you so much. So we will start our session because we are here to memorize our special events about the university and to give some ideas to our juniors and to our other pharmacists so that they may let us know, they may know the ways in which they can excel. So first of all, I would like to ask Dr. Sana Suhail, please share some ideas about your university and then we will move forward. Actually, TUF has given us more confidence through different approaches like presentation skills,
different activities through which we कैरी आउट आवर फील्ड एक्टिविटीज. हमें आइडिया हो जाता है कि हम लोग जब मार्केट में निकलते हैं, जब हम लोग टफ में आए तो सिंपल हम लोग, मैं तो अपनी बात करूंगी कि कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन टफ गिव अस सच अप्रोच, सब प्रैक्टिकल नॉलेज. जिस तरह से हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम चीज़ों को देख सकते हैं. तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमें लेट डाउन करते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट जो होते हैं, फार्मासिस्ट ने हमें हर चीज़, हर नॉलेज, हर बुक, फार्माकोलॉजी, हर चीज़ पढ़ते हैं हम, लाइक जो भी एमबीबीएस में होता है. तो हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए. हमें अपना प्रोडक्ट नॉलेज अप टू डेट रखना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं. तो वी डोंट नो बट द टुमारो ब्रिंग्स अस. तो हमें ये है कि हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए. तो जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए. और अगर मैं बात करूँ टफ टफ के यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने हर तरह से सपोर्ट किया है. मैं ये कहूँगी कि आज जिस पोजीशन पे हम लोग हैं, या जिस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क कर रही हूँ, वो मेरे टीचर्स की सपोर्ट है. मेरी यूनिवर्सिटी का उसमें नाम है. और उसके अलावा विदाउट माय यूनिवर्सिटी, माय टीचर, आई एम नथिंग. Thank you so much. So good to hear you, and it's really you are exactly true कि हमें वाकई अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज लेनी चाहिए और हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए. और बिल्कुल so सही I'm है. magic. So please, Dr. Sana Shabir, please, would you like to add in something? Must add something. हाँ, सही है. ये ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ने बड़ा कुछ दिया है. जाहिर है उस टाइम पे हम लोग जब एडमिशन हुआ, हमारा डिपार्टमेंट नया नया था, हमसे पहले एक और सेशन था, तो हम लोग थे, सेकंड सेशन हमारा था. तो हम लोगों ने देखा है एक्चुअली इसको, फार्मेसी डिपार्टमेंट को डेवलप होते हुए, हमने इसकी लैब्स को डेवलप होते हुए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फैकल्टी थी, वेरी कोऑपरेटिव. और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें बच्चों की तरह, जैसे बच्चों की पढ़ाते हैं उन्होंने हमें, वैसे हमें उन्होंने बताया, गाइड भी किया. लैब्स मेरा ख्याल में नहीं है उस वक्त के, मतलब जितने भी फार्मेसी डिपार्टमेंट थे फैसलाबाद में या लाहौर में हमने विजिट किए थे, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी की लैब्स थी, दे वर फुली, मतलब फुली वो लोग, उनमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, और हमें हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की परमिशन होती थी. तो बड़ा सीखा है हमने. और इसके अलावा जब कॉन्फिडेंस, बड़ा हमें कॉन्फिडेंस दिया है, कॉन्फिडेंस के साथ हमें प्रेजेंटेशन ज़ाहिर हम लोग देते थे, और प्रोजेक्ट्स थे सीनियर्स के साथ, और फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन होना, मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही हमारे साथ. इसके बाद जो है फिर कभी मतलब इस तरह का इंफीरियर हमें फील नहीं हुआ. जैसे और डिपार्टमेंट्स भी थे, एमबीबीएस भी था, फिजियोथेरेपी भी था. तो लेकिन अच्छा रहा, काफी काफी इंफॉर्मेटिव रहा. उसके बाद जो है अ, जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जब आए हैं, तो यही कॉन्फिडेंस और यही सपोर्ट थी इनकी, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने अपनी फील्ड में सक्सेसफुल, तो नहीं कहेंगे, सक्सेस अभी अभी बहुत दूर है. अभी हम इनिशिएट है, अभी हमारा कैरियर स्टार्ट है. ये अभी स्टार्ट है, अभी हम सक्सेसफुल नहीं कहेंगे, लेकिन अभी जितना भी हमने किया है और जितना करेंगे इंशाल्लाह, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी हमारी फैकल्टी की जो हम पे कॉन्फिडेंस था, हमें उन्होंने जो नॉलेज दिया, उस पे ही डिपेंड करता है. और आगे फर्दर इंशाल्लाह स्टडी करने का प्लान भी है, तो देखें इंशाल्लाह क्या होता है आगे. लेकिन अभी तक तो जो भी सीखा है यूनिवर्सिटी से, अच्छा ही सीखा है, और बड़ा याद आता है वो कि किस तरह हम लोग जो है सारा सीख रहे थे उस टाइम पे. जी. बिल्कुल. और Thank हाँ. थैंक यू सो मच डॉक्टर सना शबीर. आपने अपना इतना वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर किया. ऑब्वियसली आप हमारे, जैसे हम्म, मैंने भी पहले ही बताया कि आप हमारे सुपर सीनियर्स हैं, तो आपने तो यूनिवर्सिटी को हम्म, बनते देखा, उसके हर चीज आपने हाँ स्टार्ट. सही बात है. बिल्कुल. तो जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, हमें नो डाउट हमें तो यूनिवर्सिटी ने बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ बहुत एक अच्छे स्टूडेंट की तरह डील किया उन्होंने. हम्म,
और अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वाज नथिंग व्हेन आई एंटर्ड द टफ, एंड टफ मेड मी समथिंग, हम्म एंड इट्स बिकॉज ऑफ इट्स फैकल्टी। इसके टीचर्स, नो डाउट, मैं कहूँ कि मतलब इसके टीचर्स इतने अच्छे, इतने ऑसम पर्सनैलिटीज हैं वो, कि वो दे आर रियली टीचर्स इन द ट्रू सेंस। वो वाकई वाकई। वो स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बुकिश नॉलेज नहीं देते, बल्कि उनको लाइफ के हर फेज में किस तरह से मूव ऑन करना है, उनकी मॉरली, उनको एथिकली, उनको हर तरह से गाइड करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो टफ में मैंने देखी, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम सो मच ब्लेस्ड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ टफ। हम्म तो अगर मैं अपनी बात करूँ स्टूडेंट लाइफ की, तो मेरी स्टूडेंट लाइफ में हम जब थे, हमें इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन जब मैं टफ में आई तो टफ ने, टफ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आप कुछ भी ना हो ना, तो वो आपको बहुत अच्छा पॉलिश करके निखार देता है, टू बी वेरी हम्म ऑनेस्ट। तो आपके अंदर कोई भी स्किल्स हैं, कोई भी है आपके अंदर, कुछ भी है आप, तो आप टफ के अंदर आपको हर प्लेटफॉर्म मिलता है, आप वहाँ पे हर एक जगह पे अपने आप को मनवा सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हम्म हो, शो कर सकते हो। अब जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ पे हम लोग, मुझे पहले लिटरेरी सोसाइटी का बहुत शौक था, लिटरेचर का बहुत शौक था, पोइट्री का शौक था, तो वहाँ पे बैतबाजी कंपटीशन, ये वो सारा कुछ होता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसी एक्टिविटी होगी नहीं जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन आदो मैं पढ़ती भी थी, लेकिन एक्टिविटीज जो मुझे टफ ने हम्म हर वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे से मेरी स्किल्स को हम्म पॉलिश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मैं टफ से ग्रेजुएट होकर निकली, अभी मैं रिजल्ट वेटिंग थी जब मेरी जॉब हुई जीएसके में। एज यू गाइस नो, ये टॉप लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आता है। लेकिन हाँ रीजन क्या थी, माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस। और एक जिस तरह के इम्पैक्ट, जिस समय अपने बाकी जूनियर्स के लिए भी ये सब कहा जाता है कि भाई, इफ यू आर अनएक्सपीरियंस यू कांट गेट जॉब ना। तो ऐसा नहीं होता, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है, अगर बिल्कुल आपके अंदर गट्स हैं। तो बिल्कुल। हम भी टफ से ग्रेजुएट होके निकले, और फौरन से जॉब मिल गई। वो रीजन क्या थी, वो यही थी कि भाई हमें पीछे से इतनी अच्छी तरह से पॉलिश करके, वेल इक्विप्ड करके हमें मार्केट में एंटर किया, कि हम लोग के लिए वहां पे सर्वाइव करना बहुत आसान था। और बिल्कुल जो बेस्ट पार्ट टफ का था, वो ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी थी ये, और इसमें ये फायदा था कि हम लोग हर जगह पे, बीइंग फीमेल, हम हर जगह पे अपने आप को मनवाते थे। तो वो टफ की, जिस तरह मैं कहूँ कि टफ की शेरनियाँ थी, और जब ये फील्ड में निकलती है तो ये वाकई शेरनियों की तरह ही निकलती है। हाँ वैसे ये एक बात ये थी कि मैंने जो बहुत ज्यादा मतलब फेस की ना कि आप जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैंने ये चीज बड़ी फेस की थी। आप तो फीमेल यूनिवर्सिटी से आई हैं, कैसे आप मेल्स के साथ काम करेंगी, आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप कैसे इंटरेक्शन कर पाएंगी। तो ये चीज मेरा ख्याल में मुझे कभी फील नहीं हुई ना। बिल्कुल। इसकी इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती कि आपको सिर्फ को एजुकेशन में ही पढ़ना है ना। तो बिल्कुल ये हम चीज ऐसे ही था, और हमें इतने अच्छे तरह से ट्रेन किया जाता है कि हम लोग कहीं पे भी जाके सरवाइव कर जाते हैं। ये मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर हम्म रही, मैंने अपने बहुत सारे कोलीग्स और बहुत सारे जूनियर्स भी और बहुत सारे सीनियर्स से भी मुलाकात होती है, तो वो सब भी यही आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं कि यार टफ वाज ऑसम। सो मैंने भी फैसलाबाद के बहुत सारे इंस्टीट्यूट विजिट भी किए, फैसलाबाद के भी, दूसरे भी, लेकिन जो बात टफ की है वो टफ की है। सही बात है। हाँ, तो 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 अब बाद में ये भी फील होता है कि ना कि आप जो है मैंने जब मतलब हम लोगों का जब स्टार्ट था ना तो ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो ज्यादा उनको नॉलेज होता है, प्राइवेट वाले तो बस ऐसी डिग्रियां दे देते हैं और इस तरह की बातें भी ना। तो लेकिन मैंने जब जॉब स्टार्ट की और जब मैं मतलब मेरे साथ काफी लोग थे और यूनिवर्सिटीज के भी थे और फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज के भी थे। अब उनका नाम नहीं लूंगी यूनिवर्सिटीज का। तो जी। मुझे लेकिन एक बात कहूंगी कि वहाँ वाकई मेरे जो सीनियर्स थे या मेरे जो मैनेजर्स थे उन्होंने ये एडमिट की बात ना कि वाकई आपको बेसिक्स जो है वो आपकी अच्छी हैं। यानी जिसकी इन्होंने हमें बेसिक से सिखाया कि बेसिक क्या है, बेसिक नॉलेज दिया, जिसकी वजह से जो है ना हम हर चीज को समझने में हमारे लिए बड़ा अच्छा हो रहा है ये कि हम चीज को समझ जाते हैं। बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट्स खास तौर पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही तो कह रही हूँ कि हमें हर तरह से ये ट्रेन कर देते हैं कि हम लोग वाकई बहुत अच्छी तरह से आगे परफॉर्म करते हैं। सो वो जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, अभी पार्ट टफ का पार्ट है, हम भी टफ का पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और रहेंगे भी एज एन एलुमनाई। हाँ इंशाल्लाह। हाँ
इंशाल्लाह। तो जो अभी टफ में स्टडी कर रहे हैं तो वो भी इस बात को जहन में रखें कि वो दे आर स्टडिंग इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट. सो हम्म, inshallah whenever they will graduated and inshallah they will get a good job and they will settle at some high position at some good position. So इंशाल्लाह. inshallah. So what was your job experience after getting graduation and from the university? My job experience. Yeah, as you are working as an industrial pharmacist, so please share some of your experience of It industry. was इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा चैलेंजिंग है एज कंपेयर टू मतलब जो है रिटेल या कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है उसका इंटरेक्शन रोज नए लोगों से होता है. हमारा ज्यादातर वही मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है तो एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट था. और जो हम स्टडीज के से बड़ा डिफरेंट रहा हमारा. मुझे तो बड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि वहाँ का एक एनवायरनमेंट एक चेंज था. वहाँ पर एक एनवायरनमेंट होता है उसके साथ ही आपने काम करना होता है. तो लेकिन इतना अच्छा रहा काफी. लेकिन एक बात मैंने जो अच्छी थी हमारी यूनिवर्सिटी की ना कि ये लोग इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो हमें जो करवाते थे लैब में फार्मास्यूटिकल लैब में और बाकी वो Exactly. ट्रू सेंस में करवा रहे थे. तो उससे बड़ा फायदा हुआ फार्मास्यूटिकल डोजेज बनाने में. इंडस्ट्रियल का खास तौर पे जो इंडस्ट्रियल लैब थी हमारी वहां पर हम लोग काफी काम करते थे टैबलेट्स बनाने कैप्सूल्स ये वो. तो उससे बड़ा फायदा हुआ. और मैं क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड ही अब बात करूंगी जी, ज्यादा. तो बिल्कुल. मतलब जैसे वहां पर जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की तो एक्सीपियंट्स और बाइंडर्स की बारे का सारा इन्होंने हमें बताया हुआ था. और जाके बिल्कुल नहीं हुआ कि बिल्कुल एक नई चीज नहीं लगी. मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको एक नई चीज नहीं लगी. आपके पास उसका नॉलेज हमें बताया गया और बड़ा ब्रीफली बताते थे हर चीज. तो जॉब के साथ वो एक्सपीरियंस करने में बड़ा अच्छा भी लगता था चैलेंजिंग भी था. जी, बिल्कुल. तो अब करंटली जो है मेरा मेरा काम जो है अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है. तो मैं ज्यादातर सेमी सॉलिड्स पे काम कर रही हूँ. जी, जी. तो That's good. वो भी अब नया एक्सपीरियंस आ रहा है. अच्छा लग रहा है. नई डेवलपमेंट है वैलिडेशन वेरिफिकेशन सेमी सॉलिड्स एंटीबायोटिक्स माइक्रोबियल टेस्टिंग दे ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ इंशाल्लाह. Okay, that's awesome. So it's so good to hear your experience. और अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्कियां भी दे और आपके एक्सपीरियंस में भी और आपकी लर्निंग में बहुत सारा इजाफा भी फरमाए. थैंक यू. जी, yeah, welcome. So let's move towards Dr. Sana Suhail. Can you hear us? Sorry, we can't hear you. Please unmute your mic. नहीं, आपकी ऑडियो नहीं आ रही. Please try again. So I think so. So I think so. There is an audio issue with Dr. Sana Suhail. डिस्टॉर्शन आ रही है. Can you hear her? I think so. She will join again. So, being a female, you joined industry and you worked very well and in a very good position you are right now. तो आप अपने जूनियर्स के लिए क्या ऐसी सजेशन रखती हैं कि भी क्या इंडस्ट्रियल फार्मेसी बहुत सारे लोग सुनते हैं. हम भी जब स्टूडेंट थे तो हम सुनते थे कि हम्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर फीमेल तो वहाँ हेक्टिक है नहीं काम कर सकते ये वो दिस एंड दैट. बट हाँ. आपके क्या है और अगर सजेस्ट Actually, करें तो there are some drawbacks of industrial job for the females.
एक तो है इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन। या लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से जो है फीमेल्स थोड़ा सा होती हैं, लेकिन बिलीव मी कि आपको काम करने का मजा आता है। आप वाकई आपकी रिस्पेक्ट है, और आपका एक रोल है, जो आपका इंडस्ट्री में जो रोल है वो वाकई ही आपसे जब लिया जाता है तो इस बात की बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं तो सेटिस्फाई हूँ इंडस्ट्रियल जॉब से, शायद क्योंकि मैं यही करना चाहती थी हमेशा से। नो डाउट इंडस्ट्री जो है वो पूरी फार्मासिस्ट की अपनी डोमेन है, हाँ। उसने वो फार्म हम्म। वहाँ पे फार्मासिस्ट ऑल इन ऑल है, और सारा कुछ आपका है, आप भी प्रोडक्शन में, क्वालिटी एश्योरेंस में, हर जगह फार्मासिस्ट है, तो वो एक फार्मासिस्ट की डोमेन है। तो डिग्निटी ऑब्वियसली वहाँ फार्मासिस्ट की होगी ही, और आपको रिस्पेक्टेबल भी लगता है भी आप गया अच्छा, मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ। तो हाँ, अच्छा काम कर secondly, रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अभी बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में अभी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बेहतर हो चुकी है पहले से, लेकिन अभी भी वो इतनी एडवांस नहीं हुई, हम लोग इतनी एडवांस टेक्निक से काम नहीं कर रहे जितना कि बाहर या इंटरनेशनल गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइन एफडीए डब्ल्यूएचओ जीएमपी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हम कर भी रहे हैं, लेकिन वो इतनी डेवलपमेंट जो एडवांस कंट्रीज जो एडवांस कंट्री में जितनी डेवलपमेंट है उतने हम अभी उनको नहीं उनको compete कर सकते। लेकिन फिर भी हमारी मार्केट ड्रैप की वजह से, जो ड्रैप की वजह से काफी बेटर हो चुके हैं पहले से। तो ये चीज अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस को, और वो उनको पता है कि इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेट्स होप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, और ये बहुत अच्छी बात है, चलिए पॉजिटिव चेंज है एक, पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थोड़ी डेवलप हो रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। तो ये हमारे फार्मासिस्ट के लिए भी हाँ। पॉजिटिव सिग्नल है कि भी कल भी हमारा है, आज भी हमारा है, समझा जाए, हाँ, ऑफ और कल कोर्स, भी ऑफ हमारा है। कोर्स। तो ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग आपको लेट डाउन करने के लिए आते हैं, हर फील्ड में ऐसा होता है, लोग लेट डाउन करने के लिए भी आते हैं, नहीं ये हाँ। फील्ड नहीं है अच्छी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, दिस एंड दैट, सो मेनी इश्यूज हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग, मेरे तो यही है कि भाई डिसाइड वन थिंग एंड स्टक टू इट। आप फोकस्ड रहें अपने काम के साथ, और यकीन माने अगर आप फोकस्ड है ना और डिटर्मिन्ड है कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो काम कर जाते हैं। तो सक्सेस आपकी ही है, आप फोकस्ड रहो, सक्सेस आपकी है। लोग क्या कहते हैं, डोंट बॉदर। सो या यू आर राइट। नूर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मार्केटिंग का। क्या वो कैसी फील्ड है फॉर द फीमेल्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा जब मैं टॉप से निकली, जब मैंने फॉर्म मार्केटिंग में था, तो ऐसे जिसने मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि फीमेल्स के लिए बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, तो सब ये कहते थे हम्म। कि भाई मार्केटिंग है, हाउ शी कुड वर्क एंड दिस एंड दैट, बट द थिंग वाज कि इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ओवरऑल इन द मार्केटिंग में। अगर हम मार्केटिंग को देखें इन अ सेंस, हम लोग शायद कुछ लोग उसको किसी सेंस में कहते होंगे, लेकिन मार्केटिंग इज सच ए नोबल प्रोफेशन। बीइंग अ फार्मासिस्ट फॉर मी, अ मार्केटिंग हम्म। इज अ नोबल प्रोफेशन। सो इस तरह से, जिस तरह से अभी एक कोविड का सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो हाँ। मार्केट में होती हाँ। हैं, और इसमें ऐसा भी है कि बहुत सारी यूजलेस इन सेंस के इतनी वो उस डायरेक्ट इंडिकेशन के लिए, प्रॉपर इंडिकेशन के लिए नहीं है, लेकिन लोग उसको फिर भी यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो या डॉक्टर प्रिस्क्राइबर्स होते हैं उसको इस तरह प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं। तो सो ये एक मेन पॉइंट होता है कि हम लोग एक डायरेक्ट जो है वो एग्जैक्ट मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिसिन जो होती है उसको हम इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसमें अवेयरनेस होती है वो स्प्रेड कर रहे होते हैं लोगों में। डॉक्टर्स में हम्म। हम जाते हैं, डॉक्टर से डिस्कशन करते हैं, तो ऑब्वियस यकीन माने, मैं कहती हूँ अभी अगर आपके पास नॉलेज है और आप डिस्कशन करते हो किसी के साथ, तो लोग आपको बहुत अच्छी हम्म। तरह सुनते हैं। और मेरा मार्केटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, वो इस तरह से कि बात में कहते हैं ना, बात में दम होना चाहिए, तो हर कोई सुनता है। तो वो यही चीज कि आप बिल्कुल जाओ बिल्कुल। आप अपने सॉलिड पॉइंट्स, अपनी की जो है हम्म। मैसेज है, उसके साथ साथ उसके साइंटिफिक डेटा जो है वो डिस्कस करें, उसके साइड इफेक्ट्स डिस्कस करें, उसके बेनिफिट्स डिस्कस करें। जितने हम्म। बीइंग अ फार्मासिस्ट अगर हम बात करें, हमारा रोल जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ड्रग को सेफ साइड पे यूज करना सब जानते हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट्स कितने हैं वो कोई नहीं जानता, वी आर निग्लेक्टिंग देयर साइड इफेक्ट्स। तो ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उससे अपनी मेडिसिन की अवेयरनेस स्प्रेड करो यार, उसको बताओ कि यार इसका साइड इफेक्ट भी है।
ताकि लोगों को एक अवेयरनेस हो। हमारे यहाँ मिस यूज ऑफ मेडिसिन बहुत है। मैं तो बीइंग फार्मासिस्ट मार्केटिंग में हूँ, मैं इससे पहले फार्मेसी अवेयरनेस कैंपेन भी हमने यूनिवर्सिटी के फोरम से ही रन की थी और सारा कुछ। तो मैं ओवरऑल एज अ फार्मासिस्ट अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट वाज एन मार्वलस एक्सपीरियंस टू बी अ फार्मासिस्ट। तो मनवाना अपने आप को खुद होता है। तो ये बड़ा, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दूसरा ये कि जब मैं कहाँ टफ से निकली थी तो मेरे लिए वो एक बहुत बहुत ही अच्छी चीज ये थी कि जब मैं टफ में थी तो मैं तब भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच थी, जैसे शौकत खानम के साथ थी, नेशनल यूथ असेंबली के साथ थी। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था। तो जब मैं शौकत खानम में भी थी तो हम लोगों ने ब्रेस्ट कॉन और ये वो जब ये करवाते थे तो ये भी एक बहुत मार्वलस एक्सपीरियंस था। तो मेरे जूनियर्स के लिए भी सबके लिए यही है कि यार आप, फार्मेसी इज द बेस्ट प्रोफेशन। आप, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तो इसको, इसकी सारे फीचर्स के साथ इसको एक्सेप्ट करें। आप, नो डाउट हम ड्रग एक्सपर्ट्स होते हैं, हम हमारे कोई गेन एक्सपर्टीज इन मेडिसिन, नो डाउट। ठीक है, हमारे पास हर तरह का एक फार्मासिस्ट के पास वो इतना मल्टी टैलेंटेड होता है, उसके पास सारे स्किल्स होते हैं, वो मेडिसिन को भी ए टू जी जानता है, एबीसी सारी आती है मेडिसिन। उसकी रिसर्च से लेके, उसकी इंट्रोडक्शन से लेके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक, फॉर्मुलेशन तक, उसकी मार्केटिंग तक, टोटली फार्मासिस्ट की ये डोमेन और फार्मासिस्ट में काम करता है। आप उसमें से बस ये है कि आप अपना करियर गोल एक सिलेक्ट कर लें। either you are going to join industry, either you are going to be a marketer, or either you are going to be a hospital pharmacist. So decide accordingly and go ahead. Just, I guess Dr. Sana is joining. Yes. So आप इस हेलो जी नूर, आपको आवाज आ हाँ रही जी है? डॉक्टर सना कैन, हाँ जी Finally. हाँ मैं आवाज आ रही थैंक यू सो मच। जी, पता नहीं थोड़ा इशू आ गया था तो वो मैं तब से ट्राई कर रही थी तो हो नहीं रहा था। जी जी ओके, नो इशू। चलिए हम अभी का वेट कर रहे थे और चलिए आप, हम आपसे आपका एक्सपीरियंस सुनना चाह रहे हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा नूर। ये था कि जैसे मैं फॉर्म डी से मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई, मैंने ये कहा कि मैंने जॉब करनी है, मैंने फ्री नहीं बैठना। तो मैंने सर्वेड में एज अ जूनियर फार्मासिस्ट वर्क किया ऑलमोस्ट 9 मंथ्स। उसके बाद मैं अब साथ साथ अपना एमफिल कर रही थी, तो एमफिल में मैंने फोरेंसिक में किया। तो मुझे उसके साथ क्लासेस के लिए भी जाना पड़ता था, लेकिन जब रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ तो मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी, क्योंकि रिसर्च वर्क आपको पता है कि मॉर्निंग में होता है, लैब्स ओपन होती हैं, तो फिर हम लोग उसे शाम में तो नहीं जाके कर सकते। तो वो बिल्कुल उसके जी। वो मैंने तब ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स मैंने गैप लिया। देन फिर मैंने एक रिटेल फार्मेसी ज्वाइन की। तो मीन वाइल मैं साथ साथ मुझे एबट जो थे वो मेरा एक ड्रीम था कि मैंने एबट में जाना है। तो मैंने इंटरव्यूज देती रही। ऑलमोस्ट ये 9 इंटरव्यू देने के बाद मेरी सिलेक्शन हुई। थ्री Oh. इंटरव्यूज मैंने दिए। तो उसमें ये था कि मैं तब एमफिल कर रही थी, तो उन्होंने एट फाइनल पे आके मुझे उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं ले सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एमफिल करिए, तो हाउ कैन यू मैनेज द एमफिल एंड द जॉब आल्सो। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। उसके बाद फिर जब मुझे एक दफा अपॉर्चुनिटी हुआ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एबट न्यूट्रिशन ज्वाइन करूं। और वो था लेकिन थर्ड पार्टी पे, उसके लिए भी मुझे फर्दर 2 इंटरव्यूज मोर देने पड़े। तो लेकिन वो मैंने थर्ड पार्टी पे ज्वाइन कर लिया। उसमें ये था कि हम लोग अपना पेशेंट असेसमेंट करते थे, हम लोग डिफरेंट हॉस्पिटल विजिट्स करते थे। मैंने डिफरेंट कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि हम लोगों को उनकी जो कैंसर और डायबिटिक प्रोडक्ट्स होती थी वो हम लोगों को प्रमोट करनी होती थी। और वो लोग हम एज अ हेल्थ असेसर वर्क कर रहे थे। तो मीन वाइल मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे एबट परमानेंट पे रोल पे ही सीट्स आई। तो मैंने मीन वाइल साथ ही इंटरव्यू दिया, उसके लिए भी मुझे फर्दर 3 इंटरव्यूज देने पड़े। तो इनका पैनल काफ़ी टफ इंटरव्यू लेता है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर मुझे कराची भेजा गया ट्रेनिंग के लिए 1 मंथ की। और उसके ऑनवर्ड 1 ईयर हो गया मैं इनके साथ वर्क कर रही हूँ।
तो मैं बस आपको हाँ, ये कहना चाहूंगी कि जब हम लोग फॉर्मडी से ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से, तो हम अपने से हमेशा ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, और बहुत बहुत दफा हम लोग ये होपलेस हो जाते हैं कि शायद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, या शायद हमारे नसीब में कुछ नहीं है, या हम लोग ये बहुत कोशिश करते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे। तो मैं एग्जैक्टली, बस बिल्कुल यही सही कहा। बिल्कुल, मैं बस ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमें कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कि हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, या हमें कोई सिफारिश के लिए नहीं सोचना चाहिए। हमें खुद से स्ट्रगल बिल्कुल, करनी चाहिए कि हम और खुद से मेहनत करो, और खुदा की ज़ात पे भरोसा रखो। और आपको नहीं पता कि आने वाला कल क्या लेकर आता है। तो कोई ना कोई बिल्कुल, ऐसी जॉब आपको मिल जाती है, आपकी जो हार्ड वर्क होती है वो आपको पे ऑफ कर देती है। तो बस एग्जैक्टली, मैं यही कहूँगी। बिल्कुल। तो फिर ये होता है कि इंसान, और अभी जो एक सक्सेस का वर्ड है वो बहुत आगे है, लेकिन ये है कि आप कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, लगन से लगे रहो, बैठो ना, हिम्मत ना हारो। तो जब आप लगे रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहते हो, तो आप किसी न किसी कुछ बन जाते हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं भी ये चीज, हम भी ये बात कर रहे थे कि अगर हम फोकस्ड हैं, डिटर्मिन्ड हैं, हाँ, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। आप फार्मासिस्ट हो, एग्जैक्टली। आप सब कुछ कर सकते हो, बस ये है हाँ, कि डिटर्मिन्ड। बिल्कुल। बिल्कुल। जी मिस सना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर सना शबीर फर्दर। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो आपने जैसे कहा कि साइड इफेक्ट और मेडिसिन की, इसका ये सबसे बड़ा जो हमारी कंट्री में जो इसका ड्रॉबैक है, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल नहीं है। वहां एग्जैक्टली, पर वेल, फार्मासिस्ट का रोल जो है वो थोड़ा लेक है, क्योंकि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जा रही हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग भी इस सेटअप पे हैं, रिटेल सेटअप पे, वहां पर जो शॉप वगैरह फार्मेसीज वगैरह पे हैं, उनका सिर्फ ये एक्सपीरियंस है कि उनका ये एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ड्रग जो प्रिस्क्राइब करें साइड इफेक्ट दे के करें, और बड़ी गलत प्रिस्क्रिप्शन हो रही है, जो कि हमारी कंट्री में अभी इस पे फोकस नहीं हो पा रहा। हालांकि इतने फार्मेसी ग्रेजुएट इस फील्ड में हैं, लेकिन वो इतना फर्स्ट स्टेप पे नहीं है शायद, या वो आना नहीं चाहते, या अपॉर्चुनिटीज कम है इस बात का अभी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो है आपके पास सिर्फ तीन फील्ड्स बचती हैं फार्मासिस्ट के लिए पाकिस्तान में। या तो आप इंडस्ट्री में चले जाओ, या रिटेल पे चले जाओ, या क्लिनिकल सेटअप पे चले जाओ, और मार्केटिंग भी बहुत अच्छा एक फील्ड है। लेकिन हम रिटेल पे नहीं, हमारे ग्रेजुएट्स फार्मासिस्ट पता नहीं डिस्करेज होते हैं काम करने से। इसकी वजह शायद यही है कि हमारी एक माफिया है, एक केमिस्ट माफिया, जो कि हम लोगों को इस फील्ड में आने नहीं देता, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम लोग आ गए तो शायद उनके वो बंद हो जाएंगे, जिन्होंने कैटेगरी सिर्फ ली हुई है, बी कैटेगरी के लोग जो हैं खास तौर पे, वो इस चीज से बड़े डरते हैं कि पता नहीं फार्मासिस्ट आ गए तो हमारी फार्मेसीज पे तो शायद हमारी जो है जॉब्स वगैरह चली जाएं। तो ये चीज इस पे फोकस हमारी कंट्री में ज्यादा होना चाहिए मेरा ख्याल में इस पे। और ये फिर सारी जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये एरर्स, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स, अगर हम स्टडी करें, एक मैं पढ़ रही थी रिसर्च पेपर कि हमारी पेशेंट की डेथ जो है उसमें तकरीबन जो है 40% प्रिस्क्रिप्शन एरर की वजह से हो रही है। मतलब आपने एग्जैक्टली, इसमें डॉक्टर्स का भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो एक ड्रग लिख के दे रहे हैं, लेकिन जब आप फार्मेसी पे लेके जा रहे हो तो वो उसकी गला वो अपनी एक वो झाड़ है, वो अपना एक नॉलेज झाड़ता है, वो कहता है नहीं आप ये मेडिसिन नहीं है मेरे पास तो आप ये खा लें। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक तो है। ये चीज इस पे फोकस हमारी फील्ड में नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फार्मास यहाँ से आप ही की बात से मैं थोड़ी सी बात इसको सेकंड करूंगी कि हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी में ऐसा भी है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि हाँ भाई, लोग जो हैं वो, एक तो ये कि प्लेटफॉर्म के अवेलेबिलिटी का इशू है, सेकेंड ये कि फार्मस जो हम, मुझे लगता है एक लैकिंग है चीज कि हमारे अंदर फार्मासिस्ट जो है ना, कुछ कम्युनिटी ऐसी है ना, कॉन्फिडेंस की कमी है। हम सब जानते हैं, हमने सब पढ़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम इतने कॉन्फिडेंट वहां नहीं होते कि यार पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ। तो
इतने कॉन्फिडेंट हो, ये फार्मासिस्ट के एंड पे लेके गया कि क्यों वो अपने आप को नहीं मनवा रहे। क्लिनिकल उन्हें पड़ी, ड्रग इंटरेक्शन उनको पता है, उनको सब पता है, तो फिर क्यों नहीं अपने आप को मनवा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फार्मासिस्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने खुद को खुद मनवाना। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के मतलब किसी भी फील्ड में देखें तो वो सारे डेवलपिंग फेज में यार, उसमें कहीं पे भी आपको परफेक्शन नहीं मिलती, हर जगह पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो है वो वेकेंट है। तो हमें काम तो करना ही है, तो हमें अपने जो है उसी हिसाब से फार्मासिस्ट को देखना चाहिए कि हर जगह पे अपनी जगह हमें खुद बनानी है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन की जिस तरह की आपने बात की और ये सारा कुछ, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम सबको जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितने जूनियर्स हैं हमारे, इन सबको भी ये कि यार कॉन्फिडेंट रहो और एक्सपर्ट हो। ठीक है, बंदा बोलता वही है जो जिसके पास एक्सपर्टीज होती है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप जिस जगह जाओ आप खड़े हो सकते हो। तो ये पोजीशन सारी हाई, जितने भी अच्छी पोजीशन है, सारा कुछ ये आप ही का है अगर आपके पास एक्सपर्टीज है। और मैं टफ की ग्रेजुएट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये टफ में ये सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें वो सिखाते थे। हमारा हॉस्पिटल साथ होता था, MTH मदीना टीचिंग हॉस्पिटल, तो उसमें यही था कि हम लोग की जब क्लिनिकल हम पढ़ते थे, आम यूनिवर्सिटी में शायद क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह से नहीं होती जिस तरह हमें टफ ने करवाई। कि हम जब होते थे तो हमारे बाकायदा हॉस्पिटल रोटेशन होती थी, और उन रोटेशन के साथ फायदा हमें ये होता था, हम जाते थे, हम पेशेंट को खुद असेस करते थे, उसकी मेडिसिन, उसके ADR, उसके जितनी थी उसकी ड्रग इवैल्यूएशन हम करते थे। और उसके बाद हम खुद उसमें मेडिकेशन एरर्स भी हम फाइंड आउट करते थे, और हम डिस्कस भी करते थे सारा कुछ। और इससे हमें इतना अच्छा जो था वो एक हमें इन्वायरमेंट मिला कि हम वाकई हमने क्लिनिकल बहुत अच्छी तरह से सीखी। और ये सारा इस वजह से कि बिकॉज वी वर इन टफ। अगर हम टफ में नहीं होते, कहीं और होते, तो शायद हमारे पास इतनी क्लिनिकल का हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता। तो ये एक बेनिफिट सबसे अच्छी बात जो टफ में मुझे ये लगती थी कि हम हॉस्पिटल सेटअप है, हमारी क्लिनिकल रोटेशन होती हैं, और ये सब, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ का। हाँ, ये काफी अच्छा था। हम लोग केस स्टडीज करते थे पेशेंट्स की, तो हम एक उसका क्लिनिकल की रिपोर्ट बनाते थे, साइड इफेक्ट के, उनको जो रिजीम दी जा रही है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी साइड इफेक्ट, उनकी डोज की। बड़ा इंफॉर्मेटिव था, ये भी नॉलेजेबल था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी, I think so. That's all from my side. Anything you would like to add for your juniors or for your university, you may add. Uh, Dr. Sana Shabir, are you listening? Yeah, I'm listening. I think so. Universities का, जी। you want to end the session now? No, I'm still here. ओके, ओके। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में यही कहूंगी कि हमारे जो अपकमर जो अभी ग्रेजुएशन, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन की, सॉरी। कोई फर्दर आप यूनिवर्सिटी के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं तो आप कर सकती हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी, मेरा मैसेज यही है कि हार्ड वर्क करें, और अपनी बेसिक नॉलेज को जो है आप बेसिक से स्टार्ट करें। और यूनिवर्सिटी हमारी, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यूनिवर्सिटी हमें हर अपॉर्चुनिटी दे रही है, और वो देती भी है। और आप ज्वाइन करें यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो आप कॉन्फिडेंस से अपने अपने अपनी कंप्लीशन करें डिग्री की। इंशाल्लाह जब आप डिग्री करके बाहर फील्ड में आएंगे तो यू विल फील प्राउड on your institute who gave you the knowledge of life and the knowledge about the pharmacy. It's according to the standards, and it's not about studies only. It's groom you, it gives you confidence. So stay positive and keep hard working. That's all I want to say. Okay, thank you so much, Dr. Sana. So, do you want to add something? Yes, I will add something. मैं बस ये कहूँगी
कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहो, हार्ड वर्क करो। और मैं जो एक बहुत चीज़ मिस करती हूँ वो ये है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ, पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देखा करती थी कब ग्रेजुएट होंगे, कब जाएंगे, कब निकलेंगे, कब स्टोरी ऑफ एवरी कसम से ये ग्रेजुएट। वर्ड सुनती थी, कब जान सेम सेम यही। 5 5 इयर्स बहुत ज्यादा लगते थे और कहते थे कब जान छूटेगी। लेकिन अब लिटरली हम ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा मिल जाए कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ दोबारा से एंजॉय कर सकूं। बस मैं कहती हूँ ज्यादा भी नहीं, बस एक दिन ऐसा मिल जाए कि मैं वापस जाऊं, मैं यूनिवर्सिटी देखूं। और अक्सर फैसलाबाद चक्कर लगता है लेकिन बस मैं बाहर से देखती हूँ यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत मिस करती हूँ। इसलिए मैं अपने जूनियर्स को ये मैसेज दूंगी कि रश आउट मत करें, जो टाइम है उससे बहुत अच्छे से एंजॉय करें, उससे अपना 100% दें। और ये वक्त दोबारा नहीं आना, क्योंकि जब हमारे सीनियर्स हमें कहते थे ना ये वक्त दोबारा नहीं आना, तो हम बहुत नॉर्मल हाँ, लेते थे, लेकिन अब फील होता है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं सेम ऐसे ही है, मैं कुछ ये चाहती हूँ कि यार काश हम वापस यूनिवर्सिटी एक दफा चले बिल्कुल जाएं। हाँ बिल्कुल। अभी हाँ अभी कुछ देर पहले नूर को याद होगा, हम लोगों का एक तो सेमिनार हुआ था, तो हम लोग आए थे यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पर। तो इतने सालों बाद यूनिवर्सिटी आए तो इतना अच्छा लगा कि इतने, और लग रहा था कि हम पता नहीं कब से जो है यहाँ से गए हुए हैं। और बिल्कुल सना की बात बिल्कुल सही है, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम यही सोचते थे कि बस कब निकलेंगे यार, बस कब निकलें और हम ये करेंगे वो करेंगे, हम तो यहाँ दोबारा वापस ही नहीं आएंगे। बिल्कुल तो ये बात तो है। ऐसे ही है। तो ऐसे ही लेकिन जब मतलब उस वक्त जब हम लोग गए हैं तो इतना याद आया। और यूनिवर्सिटी काफी डेवलप अब पहले से मुझे तो काफी चेंज लगा। काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल चुका था और काफी डिपार्टमेंट्स बिल्कुल भी, और काफी डिपार्टमेंट्स न्यू ऐड भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बात बिल्कुल सही है, इंस्टीट्यूट से मोहब्बत जो है आपको उसका एहसास तभी होता है जब आप उससे दूर जाते हैं। लेकिन हमारे एग्जैक्टली। लिए हम फैसला, सना आप ये कह रही थी कि आप लाहौर रहती हो तो आप चक्कर नहीं लगा सकती। आप यकीन करो हम फैसलाबाद में रहते हैं तो हमारा भी चक्कर नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है, बहुत लेकिन ये याद है आता कि है वो टाइम। बिल्कुल। असल में ये है कि हमें मैं अपनी बात करूँ, मुझे तो टफ ने प्यार इतना दिया है कि मैं वाकई में वापस जाती भी हूँ। और मैं जब जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अक्सर 2 चक्कर लग जाता है यूनिवर्सिटी में ना। तो मुझे ये ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। हम यूनिवर्सिटी थे, हॉस्टल थे, 5 साल हमने इकट्ठे वहां गुजारे थे, तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी हॉस्टल लाइफ बिल्कुल एक मर्ज हो गई थी। बिल्कुल तो वो एक इतनी बिल्कुल अच्छा एक लाइफ का टाइम गुजरा था। तो मुझे तो अब वैसे लगता है भी जब मैं जाऊँ तो मैं कहती हूँ यार मैं अपने घर में आ गई हूँ। तो ये बहुत हाँ अच्छा सही एक्सपीरियंस बात था। है। थैंक यू सो मच यू गाइस, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। और थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद फॉर प्रोवाइडिंग अस सच प्लेटफॉर्म टू शेयर आवर अपॉर्चुनिटी। व्यूज। Okay, thank you so much. I would like to thank my teachers as well who made us able to do this. So thank you very एग्जैक्टली much. And एग्जैक्टली। I wish थैंक you यू सो best of मच थैंक luck, यू। guys. Thank you so much. ओके, All बेस्ट ऑफ लक और थैंक्स टू ऑल। थैंक्स टू मैम सना, स्पेशली मैम सना एंड मैम जुनैरा। Ma'am Zunaira, and they were very cooperative always. yeah. Yeah, alhamdulillah हमारे सब टीचर्स बहुत अच्छे थे। बिल्कुल Thank you, बिल्कुल। thank you so much everyone. थैंक यू सो Allah, मच Okay, मैम। Allah Hafiz. Allah ओके Hafiz. अल्लाह हाफिज। Thank you so अल्लाह much. हाफिज। Okay, Allah. थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू सना। Thank you so much. अल्लाह हाफिज।